Hello dear students, welcome to my YouTube channel, and through my channel we'll basically study about some concepts of physics that belongs to your class 12 course. Okay, देखिए हम लोग class 12 कोर्स का NCERT कोर्स का कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे फिजिक्स का. Clear? And if you ask me, sir, what are the various units that we have to study in physics in class 12? Yes, the various units are electromagnetism. Next is what? Optics. Next is what? Modern physics. And next is electronics. Clear? देखिए हम लोग ये सब ब्रांचेस पढ़ेंगे. हमें एक ब्रांच पढ़िब লাগিব class 12 of physics. Clear? And the first branch is what, sir? Electromagnetism. Good. Yes, electromagnetism we have to study first. Clear? देखिए अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है? If you ask, sir, what is electromagnetism? Yes, it is very simple, sir. Electromagnetism is a branch of physics. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है सर? फिजिक्स का एक ब्रांच है. और इस ब्रांच में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं सर? यस, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में पढ़ते हैं. वी हैव टू स्टडी व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज. हमें इलेक्ट्रिक चार्ज विषय पढ़ें. क्लियर? एंड all the various stuffs and all the various properties, characteristics of electric charge at rest, electric charge at motion, and what are the various phenomena, what are the various natural phenomena that occurs due to electric charge. We all have to study in this portion, and all the basic laws and principles that governs that phenomenon we have to study in this electromagnetism branch. Clear? So electromagnetism কাৰণে কোন কিটা natural property occur কৰে আৰু সেই natural property কোন কিটা লয়ে গভৰ্ণ কৰি আছে গোটেই বস্তুখিনি আমি ডিটেইলছত ক'ত পঢ়িম? ইলেক্ট্ৰোমেগনেটিজমত পঢ়িম. That is electric charge at rest and electric charge at motion totally comprises of what? Electromagnetism. Clear? Next sir, optics. Yes, हम लोग ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे बेटा? यस सर, हम लोग ऑप्टिक्स पे लाइट के विषय में पढ़ेंगे. क्लियर? लाइट का नेचर और लाइट से अकर हुआ जो नेचुरल फिनोमिनन है, and all those natural phenomena that occurs due to what? Light. That is refraction, reflection, diffraction, polarization, interference, everything you have to study in what? Optics. Clear? This is just an overview. We'll discuss later. Okay? Next what? Modern physics. सर हम लोग modern physics पढ़ेंगे. Yes, modern physics में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम लोग modern physics पे देखिए एनर्जी का ट्रांजिशन फ्रॉम वेव नेचर टू व्हाट? पार्टिकल नेचर. ये सब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स पे. क्लियर? इन मॉडर्न फिजिक्स विल डिस्कस अबाउट द क्वांटम थ्योरी ऑफ व्हाट? नेचर. सॉरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. क्लियर? रेडिएशन और मैटर का क्वांटम थ्योरी ये सब पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पे. देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग सेमीकंडक्टर और उससे बना हुआ जो डिवाइसेस है जैसे ट्रांजिस्टर है, डायोड है, एलईडी है, फोटोडायोड, वो सब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे. और उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे. कम्युनिकेशन कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होता है, कैसे एक रिसीव करता है, कैसे ट्रांसमिट करता है. ठीक है? एंटीना सब का काम सब क्या है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, वो सब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पे डिस्कस करेंगे. देखिए बेटा, सो बेटा हम लोग फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे बोलने से? सर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से स्टार्ट करेंगे. ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. देन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म we'll discuss about electric charge, okay, and all the properties of electric charge, all the characteristics of electric charge, and the natural phenomena that occurs due to electric charge at rest and as well as motion, and the basic principles that govern that natural phenomenon we will discuss in what? Electromagnetism. So it is a branch of physics. Clear? So we'll concentrate on what? Electromagnetism. So बेटा हम लोग electromagnetism से start करेंगे. देखिए, so basically electromagnetism is divided into two parts. बेटा कितना पार्ट? दो पार्ट. देखिए electromagnetism is divided into two parts. So দুটা পার্ট অফ electromagnetism ভাগ কৰা হৈছে. এটা হৈছে electrostatics. Sir, electrostatics, and the other is sir electrodynamics. Okay, electrodynamics. Clear? One is electrostatics and the other is what? Electrodynamics. So basically electromagnetism is divided into two parts. দুটা পার্টত ভাগ কৰা হৈছে, electrostatics and what? Electrodynamics. Clear? Now my question is, what is electrostatics? Sir, electrostatics तो electromagnetism का ब्रांच है. Okay, it is a branch of what? Electromagnetism. लेकिन हम लोग electrostatics में क्या पढ़ते हैं? सर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में पढ़ते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होकर वो कौन कौन सा नेचुरल फिनोमिनन occur करता है. क्लियर? और वो नेचुरल फिनोमिनन के पीछे कौन कौन सा लॉज या प्रिंसिपल्स गवर्न है
ठीक है, वो सब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे. दैट मीन्स वी विल बेसिकली कॉन्सेंट्रेट ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज एट, यस बेटा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट व्हाट, रेस्ट, एट रेस्ट. क्लियर. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ब्रांच है ना, वो आप लोग का एनसीईआरटी का पार्ट 1 जो किताब है 12 का, उसमें टोटली वो पार्ट 1 किताब में टोटली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है. सो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट 1 पूरा का पूरा पार्ट 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे. ठीक है, और पार्ट 2 पे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और यस इलेक्ट्रॉनिक्स. यस, मॉडर्न फिजिक्स में और हम लोग पढ़ना होगा एटम्स और न्यूक्लियस भी वहां पर पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स पे. क्लियर. देखिए अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट. क्लियर. Now what is electrodynamics? Dynamics means what? Motion. That means electric charges at motion. Electric charges at motion. Clear? Electric charges at motion. देखिए एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक है क्या सर, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. यस सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाला है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट. देखिए हम लोग का एनसीईआरटी का पार्ट 1 का जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ओके, वो सब हम लोग वो 2 चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे. क्लियर. उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद मैग्नेटिज्म है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट्स है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. वो सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में. दैट मीन्स वो सब जो चैप्टर्स है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन पे रहता है और वो सब हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे. क्लियर. लेकिन ये जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स होगा एनसीईआरटी पार्ट 1 का, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे. समझ में आ रहा है ना यहाँ तक. देखिए जब एक इंट्रोडक्टरी क्लास है. क्लियर. जब हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, कैसे कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग, कैसे पढ़ेंगे, वो सब हम लोग को डिस्कस करना जरूरी है. ठीक है. देखिए तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो लोग हम लोग देखिए वो 2 चैप्टर्स हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाउ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ब्रांच है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ब्रांच है. क्लियर. देखिए सो हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से. बेटा हम कोर पर स्टार्ट करेंगे सर, विल डिस्कस फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. हम देखिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से डिस्कस करेंगे. क्लियर. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो सर व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, basically branch of electromagnetism. That means what? It is a branch of physics that deals with the study of electric charge at rest. Yes, it is a branch of physics that deals with the study of electric charges at rest. Okay, বুজি পাইছানে? ইলেক্ট্রিক চার্জ ৰেষ্টত থাকি কিনে সি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টিবিলাক শ্ব' কৰে, কি কোনকেইটা নেচাৰেল ফিনমিনন অকাৰ কৰে আৰু কোনকেইটা প্ৰিন্সিপালে গভৰ্ণ কৰি আছে সেই নেচাৰেল ফিনমিননবিলাক, সেই গোটেইখিনি আমি ক'ত পঢ়িম, ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক্সত পঢ়িম. ক্লিয়াৰ. উইল ডিছকাছ অল দিছ ষ্টেপছ ইন হোৱাট, ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক্স. ক্লিয়াৰ. এণ্ড টুডে উইল কণ্টিনিউ ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ, ইট ইজ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ডছ. অ'কে. য়েছ বেটা আমি কি পঢ়িম ছাৰ, আমি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ড চেপ্টাৰটো পঢ়িম. অ'কে. চ' চেপ্টাৰ 1. Clear. Chapter 1 কি আছে? Yes sir, electric charges and field. Clear. And field means what? Electric fields. We'll discuss later. Okay. Now electric charges, it is very important. Electric charges. So we'll start from electric charges. Clear. Now beta, we live in this physical world. Okay. Where we live, sir, we live in this physical world and there are physical objects in this physical world. Clear? Okay, yes, simple. And if we divide any physical object to a smaller particle, and that smaller particle which remains independent, which exists independently, clear, which is stable,
clear, and it's called the what? Fundamental unit of matter is called, sir, atom. Okay, atom is the smallest particle of matter that remains what? Stable, that remains independent. Okay, now my question is, are there smaller than atoms? Particles that are smaller than atoms? Yes, sir, there are particles that are smaller than atoms, that is electrons, protons, neutrons, and there are many particles which are smaller than atoms. Then, sir, why do not call that particles the fundamental unit of matter? Because they do not remain in what? Equilibrium. They are not stable. That's why they are not called what? Fundamental unit of matter. But they are the smaller than atoms. Clear? Now, electron, proton, and neutron. We will basically concentrate on electron. Yes, beta. Electron. Clear? Proton and neutron. Okay? And neutron. So, আমি electron, proton আৰু নিউট্ৰনৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, বুজি পাইছানে? So we'll discuss about electron, proton and neutron now. Now, what is electron? Sir, electron is a particle. Okay, it is a particle. What is a proton? It is also a particle. What is neutron? It is also a particle. These are what? The subatomic particles. ये लोग को हम लोग क्या बोलेंगे? Yes sir, हम लोग ये लोग को subatomic particle बोलेंगे. Why subatomic particle? Yes, subatomic particles. Subatomic particles. Clear? Now what are subatomic particles? Those particles which are present in what? Atom are called subatomic particles. They are part of atoms. Clear? Now electron. We'll concentrate on electron now. What is electron? If I ask what is electron? Sir, electron is a subatomic particle. It is smaller than atom. Okay? Clear? Now, sir, electron, so this is an electron. We have to imagine it. This chapter is basically imagination, okay? So electromagnetism totally is what? Imagination. We cannot see electrons, we cannot see what? Protons. Clear? We have to just imagine it. And all the effects we have to imagine it. Now, this is what? Electron. Yes, you can ask, sir, electron इतना बड़ा होता है क्या? नहीं भाई, electron है. Just imagine किया हुआ है. तुम लोग को समझाने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए मैंने जैसे यहाँ ड्रॉ किया हुआ इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन. ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन है ये. क्लियर? नाउ सर, इलेक्ट्रॉन डू हैज मास? यस, इलेक्ट्रॉन हैज मास बिकॉज इट डू एग्जिस्ट. क्लियर? इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है ना, मास होना ही पड़ेगा. यस, मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेटा मास क्या है? सर, मास इलेक्ट्रॉन का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. ओके, यस, इलेक्ट्रॉन हैज मास. हाउ मच? सर, इलेक्ट्रॉन हैज मास 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Yes, electron has mass. Okay. Now, sir, what is proton? Proton is also subatomic particle. Do proton has mass? Yes, sir. Proton also has mass. Do neutron has mass? Yes. The answer is very simple. Electron also has mass because it do exist. Clear? Now, this is an electron, and electron has mass 9.1 10 to the power minus 31 kg. For an electron to exist, it must have mass. याद रखना. क्लियर? मास होना ही पड़ेगा. नाउ मैंने और एक इलेक्ट्रॉन लिया. देखिए ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन. बेटा ये क्या है? सर, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन. ओके, ये इलेक्ट्रॉन के पास मास है कि नहीं? सर, मास है. कितना मास? इतना ही तो मास होगा ना, एक ही तो पार्टिकल है, सेम पार्टिकल है. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों. 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. बेटा समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखिए, दो हम लोग ने क्या लिया? दो इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है? सर, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास मास है. क्लियर? नाउ हम लोग ये दो इलेक्ट्रॉन्स को, इफ वी नेग्लेक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, इफ वी ब्रिंग टू इलेक्ट्रॉन्स नियरर टू देम, देन ऑब्वियसली दे विल व्हाट? अट्रैक्ट ईच अदर. अट्रैक्ट करेगा या नहीं बेटा? यस सर, अट्रैक्ट करेगा. क्यों अट्रैक्ट करेगा? सर, दोनों के पास मास है ना, इसलिए अट्रैक्ट करेगा. क्लियर? नाउ द टू इलेक्ट्रॉन्स विल अट्रैक्ट ईच अदर. व्हाई? बिकॉज दे हैव मास, एंड वी नो दैट एनी टू हेवनली बॉडीज दैट हैज मास, clear, they always attracts each other by a force called, sir, gravitational force. Okay, gravitational force. समझ में आ रहा है ना? देखिए, दो इलेक्ट्रॉन हम लोग ने लिया है और दो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है? सर, मास है. तो दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एक दोनों को, सर, अट्रैक्ट करेंगे. कौन सा फोर्स से? सर, ग्रेविटेशनल फोर्स से. ओके, एंड दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड व्हाट? ग्रेविटेशन. But it is found experimentally that the two electrons always what? Repel each other. दो इलेक्ट्रॉन्स पास में ला दिया जाए तो क्या होगा? रिपेल करता हुआ नजर आएगा. ठीक है, ठीक है ना? देखिए, दैट मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ मास होने से
वो लोग हमेशा क्या करना था सर, वो लोग हमेशा अट्रैक्ट करना था बाय फोर्स को वर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं सर, ये वो लोग रिपेल कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन रिपेल अदर इलेक्ट्रॉन एंड द अदर इलेक्ट्रॉन आल्सो रिपेल अदर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? देखिए तो दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, the two electrons are repelling each other. That means we have to define something here. It is very important. Okay? So দুটা ইলেকট্রনস আমি ললো আৰু সেই দুটা ইলেকট্রনস কি কৰি আছে, ৰিপেল কৰি আছে। Clear? Now if an electron only has mass, then it will always attract other electron, but here the electrons are repelling each other. That means इलेक्ट्रॉन के पास there is something other than mass. Clear? समझ में आ रहा है ना? देखिए there is something other than mass inside the electron. In the electron सिर्फ इलेक्ट्रॉन का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मास नहीं है, मास के अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण दो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट नहीं हो गए। क्या हो रहा है बेटा? यस सर, रिपेल हो रहे हैं। क्लियर? दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा? यस, दो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ तो है अदर देन मास, मास के अलावा भी कुछ और है जिसके चलते वो दो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट नहीं बल्कि क्या कर रहा है सर, रिपेल कर रहा है। एंड दैट समथिंग इज टर्म्ड एज व्हाट सर? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? That something is termed as electric charge. तो आसान हो गया सर। यस सर, इलेक्ट्रॉन के पास मास तो है ही है। क्लियर? मास तो है वो लोग के पास, लेकिन मास के अलावा भी क्या है सर? मास के अलावा भी वो लोग के पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ही है। इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करने के लिए मास चाहिए, साथ पे क्या चाहिए सर? इलेक्ट्रिक चार्ज भी चाहिए। यदि वो उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है तो वो पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहलाएंगे। क्लियर? दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के पास मास है, उसके बाद क्या है सर? इलेक्ट्रिक चार्ज है। सो इलेक्ट्रॉन आगात কি আছে? মাছ আছে, আৰু মাছৰ বাহিৰেও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টি আছে, আৰু যোনটো প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে এটা ইলেক্ট্ৰনে বেলেগ এটা ইলেক্ট্ৰনক বেটা কি কৰিছে স্যাৰ? ৰিপেল কৰিছে। ক্লিয়াৰ? দ্যাট মিন্স ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ। ओके, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? यस, इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट समथिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रॉन। बेटा क्या है? वो समथिंग है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया। सिर्फ मास होता तो दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते सर? अट्रैक्ट करते, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज होने के कारण दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? रिपेल हो गया। क्लियर? सो हम लोग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। वी हैव इंट्रोड्यूस ए वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट physical quantity, that is what? Electric charge. Okay, now just the mass is a property of any body. Yes, electric charge is also a property of electron. Okay, अभी तक तो हम लोग ने क्या पढ़ा है सर? अभी तक तो हम लोग ने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। यस, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसके अंदर क्या है सर? मास तो है ही है, उसके बाद और क्या है सर? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलने वाला वो प्रॉपर्टी भी है इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, देखिए अभी yes, electric charge. So electric charge is it is the property. It is the property. देखिए, it is a property possessed by इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और अभी तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही जानो। ठीक है, अभी तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही कंसीडर करो, बाद में हम लोग देख लेंगे क्वार्क से। ठीक है, वो सब एंटी क्वार्क्स वो सब हम लोग देख लेंगे, लेकिन क्लास 12 के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से कंसीडर करना जरूरी है, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन by which it attracts or repels other charged particles. क्लियर? समझ में आ रहा है ना? देखिए
इलेक्ट्रिक चार्ज के सर एक प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है सर? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है, और जिस प्रॉपर्टी के कारण एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दूसरे चार्ज बॉडीज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास ही वो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज वाला प्रॉपर्टी। समझ, इतना तक समझ लेना, क्लियर? याद रख लेना, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास ही वो प्रॉपर्टी है, न्यूट्रॉन के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? Now we'll discuss about the nature of the charges that is present in electron or proton. Now my question is, देखिए मेरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास जो चार्ज वाला प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास, क्या वो दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर सेम है क्या? उसको जानने के लिए हम लोग जैसे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, जैसे एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया। देखिए हम लोग ऐसे पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग पिक्टोरिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पकड़ के लाएंगे क्या हम लोग? नहीं सर, हम लोग इधर जस्ट दिखा रहे हैं समझने के लिए। सर आप हम लोग को जस्ट समझा रहे हैं। ओके, देखिए हम लोग ने क्या लिया सर? इलेक्ट्रॉन लिए, और एक क्या लिया हम लोग सर? यस, और एक इलेक्ट्रॉन लिए। इज फाउंडेड। ठीक है, हम लोग को देखा जाता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन को देखिए रिपेल कर रहा है, रिपेल। क्लियर? इधर रिपेल कर रहा है। क्लियर? देखिए हम लोग ने इलेक्ट्रॉन लाया था, फर्स्ट क्या लाया सर? यस, फर्स्ट हम लोग इलेक्ट्रॉन लाया, तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ने रिपेल कर दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के जगह पे हम लोग ने क्या लाया सर? प्रोटॉन लाया। ठीक है, ये हो गया एक प्रोटॉन। तो बस पॉजिटिव चार्ज भी इधर हम लोग वो कर सकते हैं, लेकिन अब अभी तक हम लोग ने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैसे बनाएंगे वो सब स्टडी नहीं किया है ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही लिया है मैंने। ठीक है, बाद में हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी कैसे बनाएंगे वो सब स्टडी करने के बाद फिर हम लोग चार्ज बॉडी पकड़ लेंगे। क्लियर? अभी जस्ट हम लोग को जानना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, तो इसे हम लोग कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है सर? इलेक्ट्रॉन सबएटॉमिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? यस, इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्लियर? प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन इज अ सबएटॉमिक पार्टिकल, उसके पास भी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्लियर? इतना जानना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रिक चार्ज वाला कंसेप्ट है। देखिए तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था, और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या कर रहा है? यस, अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, और दो हम लोग ने क्या लाया था? प्रोटॉन। प्रोटॉन को क्या किया? अट्रैक्ट किया। ठीक है, देखिए प्रोटॉन को अट्रैक्ट किया और इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया। इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन को अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो लेकिन देखिए दोनों, लेकिन फोर्स का एट्रैक्टिव फोर्स, एट्रैक्शन और रिपल्सन। क्लियर? देखिए एट्रैक्शन और रिपल्सन का लेकिन मैग्नीट्यूड सेम, समझ लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। जितना फोर्स से रिपेल कर रहा था इलेक्ट्रॉन को ना, उतना ही फोर्स से प्रोटॉन को क्या कर रहा है बेटा? यस सर, अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम लोग को समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था, प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन जितना फोर्स से रिपेल कर रहा है उतना ही फोर्स से क्या कर रहा है सर? उतना ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम लोग को ये पकड़ लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज में, इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है सर? इलेक्ट्रिक चार्ज है। प्रोटॉन के पास भी क्या है सर? इलेक्ट्रिक चार्ज है। लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर सेम नहीं है। यदि नेचर सेम होता तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने से वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता सर? रिपेल करता है। क्लियर? लेकिन हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? यस, एक को रिपेल कर रहा है और एक को अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर? दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है और प्रोटॉन के पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, उसका मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि फोर्स सेम है। क्लियर? लेकिन नेचर क्या है? यस, नेचर अपोजिट है। क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज और नेचर की वजह से सेम वजह से, बुझी बात है ना? सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द टू चार्ज पार्टिकल whose nature are opposite but contains the same magnitude of electric charge, and the charge of electron or proton. So proton को हमें E plus दिखने डिफाइन करें। We define proton as E plus is what? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Clear? So in our class we have discussed all these stuffs about what? Electric charge. So beta will continue in our next class. So thank you for today.